Okay, ji. Assalamu alaikum. This is Dr. Yasir. Hope everyone is fine and good health. So let's start with today's topic, that is regulation of enzymes activity. Okay, first of all, I would like to talk about some learning objectives. At the end of the lecture, the students should be able to understand the following things, which include the definition of allosteric enzymes. What are they? What do they do? What are allosteric binding sites? The students should also be able to describe the process of enzyme regulation under the influence of homotropic and heterotropic effectors. To explain the process of feedback inhibition, what is feedback inhibition, with the help of a few examples. Then comes number four. One should be able to describe the process of covalent modification with the help of phosphorylation, dephosphorylation processes, and what are their impacts on enzyme activity. Number fifth is to explain the induction and repression of enzyme synthesis. These are different processes. We'll go one by one and have a look on each and every aspect of this enzyme regulation topic. The last one is genetic basis of enzyme synthesis. So these are the topics which we will cover in today's lecture. Any questions, please raise your hand, or at the end of the lecture, we will have a little discussion about what will be done before that. Okay, Ji. Let's start with the topic regulation of enzyme activity. First of all, everyone should be clear. We have got so many enzymes in our body responsible for various functions, for various metabolic functions, in fact. As an organism, as a human, we have to coordinate between different metabolic reactions in which various enzymes are involved. So the regulation is very important. For example, if some enzyme is involved in a particular reaction and it is not properly regulated, then it can lead to excess of the product formation, which is actually not required by the body. So that can lead to deleterious effects in the body. So we start here. The regulation of the reaction velocity of enzymes is essential if an organism is to coordinate its numerous metabolic processes. Just like I mentioned, it is very important. It is vital for life. Your every enzyme is under some sort of regulation. I mean, there are different mechanisms for regulation. Some are allosterically regulated, some are hormonally controlled through covalent modifications, phosphorylations, dephosphorylation processes. So the overall purpose of this regulation of enzyme activity, which has been given by nature, is to have a proper check and control over the enzymes. I mean, you sometimes you do not require enzyme to be active at certain point. Sometimes your body requires enzyme to be active at certain another point. So it all depends on the I mean how much your regulation process is involved in the enzyme activity. Whenever there's a need to activate a particular enzyme, a particular regulating set of substances come into action, and they regulate it by increasing the activity or decreasing its activity. The rates of most enzymes are responsive to changes in substrate concentration. I think you guys are already having done with the Michaelis-Menten and Lineweaver plot, competitive inhibitions, non-competitive inhibition, substrate concentration, Vmax, V naught, and etc. So an increase in substrate concentration, as we all know, prompts an increase in reaction rate, which later on tends to return to the concentration of substrate towards normal. In addition, अगर हम सिंपल की बात करें, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड करें तो सिंपल सी बात है, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, आपकी एक्टिविटी इनहांस हो जाएगी, और आफ्टर सम टाइम जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है वो दोबारा से कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी और इट विल कम टू बेस लेवल.
इसके अलावा the some enzymes possess specialized regulatory functions that respond to allostatic effectors or covalent modifications, or alternatively, they show altered rates of enzyme synthesis. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि at certain stages, certain points of life, there is a tendency of your body to produce or synthesize more and more enzymes. I mean, it depends on the requirement of the body, especially when physiological conditions are changed. Okay, let's start with the allostatic enzyme. First of all, definition. I mean, I'm sure you all are aware of the basic structure of the enzyme. You must be aware of the active sites where the substrate comes in and bind. That is called as an active site. Other than that particular active site, there are additional sites in allostatic enzyme. Allostatic is originated is a Greek word. Allo means other. तो इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि अदर साइट है एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर it's an another site responsible for binding specific type of substances. Such enzymes are called as allostatic enzymes. These are unique places on the enzyme molecules. Unique in what sense? अगर उसको यूनिक कहा जा रहा है इसका मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर or they are controlling the regulatory system, or they are affecting the enzyme somehow by interacting with the a particular site जिसको हम यूनिक साइट कह रहे हैं. और जब वो जाके कोई भी सब्सटेंस इसको स्पेसिफिकली आप इफेक्टर्स बोलते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्टर्स, वो आके जब उस स्पेसिफिक यूनिक साइट के ऊपर जिसको आप एलोस्टेरिक साइट बोल रहे हो बाइंड करेंगे, वो एक फर्दर इट लीड्स टू अ चेन ऑफ इवेंट्स जिसके अंदर फर्दर एनहांसमेंट हो जाती है, आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एंजाइम की, आपकी बाइंडिंग कैपेसिटी बाइंडिंग कैपेबिलिटी इनहांस हो जाती है. ठीक है, सबस्ट्रेट की टू इट्स एक्टिव साइट. ठीक है, और जो उसकी सारी वर्किंग मशीनरी होती है इट कम्स इनटू एक्शन. Okay, look at this figure. This is the enzyme. This is the active site of the enzyme. This is substrate. This is a straightforward process. It will come into closer to the enzyme. It will bind here. ठीक है, अगर आपको याद होगा वो दो तरह के हमने मॉडल्स पढ़े थे, लॉक एंड की मॉडल. ठीक है, याद है? ठीक है, it will bind to this enzyme, it will activate it, and that's it. Here you can see another site which is called as allosteric site. Okay, the enzymes possessing this type of site are called as allosteric enzymes. What happens here? Some sort of effector comes in and binds to this site. This activates the enzyme catalytic activity. It enhances its ability to bind to more and more substrates, overall increasing or decreasing. Again, I repeat, increasing or decreasing the efficiency or catalytic activity of the enzyme. Okay? It depends what sort of effector is going to come and bind to its allosteric site. If it is a positive effector, then obviously it will increase its catalytic activity. If it is a negative effector, then it will decrease its activity. वो उसकी एक्टिविटी साइट्स को भी बाइंडिंग करने देगा सबस्ट्रेट के साथ, उनकी रिड्यूस कर देगा एक्टिव साइट्स को. कैटालिटिक एक्टिविटी, जो भी यूनिट्स हैं, मल्टी सब यूनिट जितने भी हैं एंजाइम के अंदर होते हैं, उन सारों की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा. इट डिपेंड्स ऑन व्हिच टाइप ऑफ इफेक्टर इज गोइंग टू कम एंड बाइंड टू दिस पर्टिकुलर एलोस्टेरिक साइट. Allosteric enzymes have one or more allosteric sites. ठीक है, एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं फ्रॉम एंजाइम एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. ठीक है, वी जस्ट हैड अ लुक इन अ प्रीवियस डायग्राम. ठीक है, सेम जगह के ऊपर नहीं होती,
आपकी एक्टिव साइट से हट के डिफरेंट जगह के ऊपर लगी होती हैं। Molecules which bind to allosteric sites are called as effectors or modulators. आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाती है effector और modulator की, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि effector या modulator ऐसे molecules होते हैं जो कि bind करते हैं to the allosteric sites and they are responsible in regulation of enzyme activity. Again, uh, as previously mentioned, there can be positive effectors, there can be negative effectors. The enzyme activity is increased when a positive allosteric effector binds at the allosteric site. ठीक है, पॉजिटिव से आपने इंक्रीज का मतलब लेना है, नेगेटिव से आपने इनहिबिशन का या डिक्रीज का मतलब लेना है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ज़ाहिर नेगेटिव डिक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, दे बाइंड एट द एलोस्टेरिक साइट कॉल्ड इनहिबिटर साइट एंड इनहिबिट्स द एंजाइम एक्टिविटी। Binding to the allosteric sites alter the activity of the enzyme. इसको अगर commonly used term होती है जिसको आप बोलते हो cooperativity और cooperative binding। ठीक है, मतलब allosteric site के ऊपर एक molecule जिसको आप effector या modulator कह रहे हो वो आके bind करता है। Here, look at this diagram again. एक effector है या modulator है, वो allosteric site के ऊपर आके bind कर रहा है। ठीक है, और आगे से एक चेन ऑफ इवेंट शुरू कर रहा है जिसके अंदर ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस कर रहा है, इसकी एक्टिव साइट्स को एक्टिव कर रहा है और सबस्ट्रेट आके इसके साथ ज़्यादा बाइंड करके इस पर्टिकुलर रिएक्शन को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, इट एनहांसेस द कैटालिटिक एक्टिविटी इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्टर इफ इट कम्स इन एंड बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं कोऑपरेटिविटी और कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं कोऑपरेटिविटी और कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, मतलब the attachment of one molecule to allosteric site leads to all other activities going on inside the enzyme. That includes binding with the substrate, the catalytic site activity. ठीक है, आपकी जो ये आपकी एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, उनका नंबर बढ़ाना या उनका नंबर या उनकी एक्टिविटी को एनहांस करना। ठीक है, उसका मैकेनिज्म एक्शन तेज करना, सही है, उसका रिएक्शन वेलोसिटी को तेज करना, ये सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। लाइकवाइज अगर नेगेटिव इफेक्टर लगेगा तो वो उसको डिक्रीज करेगा ऑपोजिट वे में, मगर वो भी ऑब्वियसली इन कंजंक्शन विद द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एंजाइम काम करता है। लगता आके यहाँ एलोस्टेरिक साइट के ऊपर। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो वो उसको एनहांस करेगा सारी चीज़ों को, अगर नेगेटिव है तो वो इफेक्टर है तो वो उसको डिक्रीज करेगा। देयर विल बी डिक्लाइन इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके जी, रेगुलेशन ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स, दीज आर रेगुलेटेड बाय मॉलिक्यूल्स इफेक्टर्स, हमने पढ़ लिया है, दैट बाइंड नॉन कोवेलेंटली। ठीक है, कोवेलेंट अटैचमेंट नहीं होती, नॉन कोवेलेंट अटैचमेंट होती है एट द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। These enzymes are composed of multiple subunits, and the regulatory allosteric site that binds the effector may be located on a subunit that is not itself catalytic. Okay, this is an important point. Itself, there is a possibility the allosteric site के ऊपर regulatory subunit लगा हुआ है, ठीक है, that is itself is not catalytic. ठीक है, it enhances the other catalytic sites, active sites, or other machinery, other subunits of the enzyme, make it more active or reactive depending on whether it is positive effector or a negative effector. मगर जिस जगह के ऊपर वो आके बाइंड कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो भी खुद से itself catalytic हो और उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करे। The presence of allosteric effector can result in following ways, जिसके अंदर एंजाइम की अफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट इंक्रीज हो सकती है, ऑल्टर हो सकती है, इनफैक्ट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। एट द सेम टाइम एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, इट कैन ऑल्सो मॉडिफाई द मैक्सिमल कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। और एक और ऑप्शन हो सकती है, ये दोनों चीज़ों को भी इफेक्ट कर सकता है, एफिनिटी को भी ऑल्टर कर सकता है और उसकी मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी को भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, allosteric enzymes usually contain multiple subunits and frequently catalyze the committed step early in the pathway. As we discussed earlier, this can be considered as a committed step. Once the effector or modulator molecule comes closer to the enzyme, binds to the allosteric site, it is called as a committed step. It leads to chain of reactions. ठीक है, within the enzyme, उसकी activities
एक्टिव साइट्स को एनहांस करना, उनकी एक्टिविटी कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस करना, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को एनहांस करना, ये सारा फंक्शन तभी पॉसिबल है एलोस्टेरिक एंजाइम्स के अंदर जब एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके कोई ना कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, व्हिच इज नोन एज, व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द कमिटेड स्टेप। ये एक डायग्राम है, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा तवज्जो देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉजिटिव एलोस्टेरिक साइट, this is a negative allosteric site. Positive allosteric effector comes in and bind. This was the committed step. It leads to what? It leads to the binding of substrate to the binding area. Okay? Enhances the catalytic area. Enhances the cofactor binding to the cofactor binding area. Okay? So it's going to increase all the processes that would lead to increase efficiency of that particular enzyme. Likewise, on the other hand, negative allosteric site के ऊपर negative allosteric effector लगेगा और वो आगे क्या करेगा, इधर लग के इधर बस आगे लग के अपना काम खत्म नहीं करेगा, ये आगे बाकी जो उसके स्ट्रक्चरल फंक्शनल सब यूनिट्स हैं एंजाइम के, जिसके अंदर कैटालिटिक साइट्स हैं, जिसके अंदर बाइंडिंग एरिया है, एक्टिव साइट्स हैं, को फैक्टर बाइंडिंग एरिया है, इन सारी साइट्स को एक्टिव करेगा। इनके साथ जो भी कंसर्न को फैक्टर्स हैं या सबस्ट्रेट्स हैं उनको बाइंड करने में उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा इन केस ऑफ नेगेटिव, और पॉजिटिव के अंदर एनहांस करेगा। So we can call it positive allosteric effector or negative allosteric effector. ओके जी, नेक्स्ट एलोस्टेरिज्म की समझ आ गई होगी, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट्स क्या होती हैं, ठीक है, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड एज होमोट्रोपिक इफेक्टर्स एंड हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर्स। होमोट्रोपिक इफेक्टर्स, अगर सबस्ट्रेट इटसेल्फ सर्व करे एज एन इफेक्टर, इस कंडीशन को आप बोलते हैं या इस टाइप के इफेक्टर को बोलते हैं होमोट्रोपिक इफेक्टर, ठीक है। सबस्ट्रेट एज एन इफेक्टर काम कर रहा है और वो एलोस्टेरिकली बाइंड करता है एक पर्टिकुलर एंजाइम के साथ, उसको बोलते हैं होमोट्रोपिक इफेक्टर, ठीक है। अब इसके बरक्स अगर आप इसके ऑपोजिट देखो, हेटेरो का क्या मतलब होगा कि सबस्ट्रेट खुद से आके इफेक्टर का काम नहीं करता, सबस्ट्रेट अपनी एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा और कोई और मॉलिक्यूल आएगा और वो आके एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करके एक्टिविटी को एनहांस या डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो इस पॉइंट को क्लियर करेंगे यहाँ। बट अगर आपसे पूछता है कोई होमोट्रोपिक इफेक्टर्स क्या है, आप उसको बोलोगे व्हेन द सबस्ट्रेट इटसेल्फ सर्व्स एज एन इफेक्टर, इटसेल्फ, ठीक है। There is no other molecule involved here. The substrate itself serves as an effector. The effect is said to be homotropic. और मोस्ट ऑफन ज़्यादा 90% केसेस के अंदर क्या होता है, जब आप होमोट्रोपिक इफेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव इफेक्टर का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट अगर खुद आके लग रहा है एंजाइम के साथ और वो एलोस्टेरिक कली भी उसको एज अ फैक्टर भी कंट्रोल कर रहा है और एक्टिव साइट के ऊपर भी आके उसके साथ आगे फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है उसने, ऑब्वियसली रिएक्शन को प्रोसीड करना है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 90 मोर देन 90% केसेस के अंदर ये पॉजिटिव फैक्टर का काम करते हैं। In such cases, the presence of substrate molecule at one site on the enzyme enhances the catalytic properties of the other substrate binding sites. ठीक है, एक जगह के ऊपर बाइंड किया, दूसरी और बाइंडिंग साइट को एक्टिवेट कर दिया, तीसरी साइट को एक्टिवेट कर दिया, so that more and more substrates come and bind to those particular substrate binding sites. और जिसको हमने पहले भी एक नाम दिया था कोऑपरेटिव बाइंडिंग, या इसको बोल सकते हैं कोऑपरेटिविटी, ठीक है, कॉपरेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। तो अगेन homotropic effectors, what are homotropic effectors? When the substrate itself serves as an effector, the effect is said to be homotropic, ठीक है। And when some other molecule other than the substrate serves as an effector, the effect will be called as heterotropic effectors. ये जो एंजाइम्स होते हैं होमोट्रोपिक इफेक्टर्स के, दे प्रोड्यूस अ टिपिकल कर्व जो सिग्मोइडल शेप की होती है, जिसके अंदर आप रिएक्शन वेलोसिटी v नॉट को प्लॉट करते हो अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन s के।
ओके जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस चार्ट। ठीक है, ये आपके सामने एक चार्ट ग्राफ है। ठीक है, लाइन ग्राफ है आपके सामने। अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर देखो तो आपको सबस्ट्रेट नज़र आ रहा है, के हाफ नज़र आ रही है। वाई एक्सिस के ऊपर देखोगे वी नॉट या रिएक्शन वेलोसिटी नज़र आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, के हाफ क्या होती है? इट इज़ द हाफ मैक्सिमल कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप के हाफ भी बोल सकते हो, के 0.5 भी बोल सकते हो। It is basically a substrate concentration that gives rise to reaction velocity, which is 50% of the Vmax. ठीक है, so आपको काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि apparent affinity उस पर्टिकुलर एंजाइम की क्या है। अगर आप उसको गौर से देखो इस ग्राफ को, आपको इधर सिर्फ के हाफ तीनों लाइंस, आई मीन थ्री डिफरेंट कलर्स, सेंटर वाले को फॉलो करेंगे। दिस इज अ ब्लैक कलर, दिस इज नॉर्मल, uninfluenced by a positive or a negative, uninfluenced by a positive or negative effector। ठीक है, तो दिस इज ये sigmoid curve, इसकी एक v max है। ठीक है, दिस इज k हाफ। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को सेम रखा जाए तो v max कैन बी ऑल्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्लैक को नॉर्मल सिचुएशन की बात करें जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्टर नहीं लगा हुआ, ठीक है, एक खास सर्टेन वी मैक्स वो अचीव करता है, राइट। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड है, आपका सबसेट आके आपके एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर रहा है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्टर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, यू विल गेट दिस टाइम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम होमोट्रोपिक इफेक्टर्स की बात कर रहे हैं, यही सबस्ट्रेट पॉजिटिव इफेक्टर का काम करता है तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वी मैक्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सेम रहेगी। ठीक है, वही सबस्ट्रेट जो है वो एज अ पॉजिटिव इफेक्टर का काम कर रहा है, उसकी वी मैक्स इनहांस हो जाएगी बट उसकी के हाफ विल रिमेन द सेम। ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, वी मैक्स क्यों ऑल्टर हो रही है? क्योंकि वो एज अ नेगेटिव इफेक्टर काम कर रहा है इन रेड लाइन। ठीक है, सो इन शॉर्ट, अगर आपसे कोई पूछता है या आपको ये बनाने के लिए आ जाता है तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है कि आप इसमें ये मेंशन करोगे कि सेम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस के ऊपर वी मैक्स कैन बी ऑल्टर्ड वेयर एज के हाफ रिमेन्स द सेम इन ऑल केसेस। ठीक है, इन कंपैरिजन, अब ये बी जो ये जो है लाइन ग्राफ, इसको देखिए। अगेन दिस इज सिग्मोइडल शेप, नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी। इस केस के अंदर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज बीइंग ऑल्टर्ड। जब भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल्टर होती है, इट विल अफेक्ट इट्स के हाफ। ठीक है, वी मैक्स भी वेरिएबल पे चली जाएगी, बट स्पेसिफिकली अगर आप कंपैरिजन करो पिछली वाली डायग्राम के साथ, इसके साथ ग्राफ के साथ, ठीक है, इसके अंदर आपको के हाफ is same in all cases because here there is the same substrate concentration. In comparison, this is different substrate concentrations. पॉजिटिव इफेक्टर के केस के अंदर जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी चेंज कर दिया आपने, ऑल्टर कर दी है, तो जो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट विल आल्सो बी ऑल्टर्ड। ग्रीन के केस के अंदर यू कैन सी हियर, ठीक है, के इज हियर, ब्लैक के केस के अंदर, नॉर्मल एंजाइम के अंदर। ठीक है, अगर आप नेगेटिव फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हियर। सो अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो इसके अंदर हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो गई है, इसके अंदर हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर्स। हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर्स क्या होते हैं? होमोट्रोपिक की हमने बात कर ली, उसके अंदर दो वेरिएशन भी देख ली। एक ग्राफ के अंदर सबस्ट्रेट वाज अनऑल्टर्ड, ठीक है, जिसके अंदर आपने उसका रिजल्ट क्या देखा? पॉजिटिव नेगेटिव के केसेस के अंदर वी मैक्स तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ठीक है, मगर जो के हाफ है दैट विल रिमेन सेम इन ऑल केसेस।
अच्छा, सेकंड ग्राफ के अंदर आपने क्या देखा, चार्ट के अंदर क्या देखा, जो लाइन ग्राफ या चार्ट था उसके अंदर आपने ये देखा कि व्हेनेवर द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चेंजेस तो के हाफ आल्सो गेट्स चेंज्ड, ठीक है, बोथ इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्टर्स एंड इन नेगेटिव इफेक्टर्स। ये दोनों किस्म के ग्राफ्स जो देखे आपने, दैट इज रिलेटेड टू होमोट्रोपिक इफेक्टर्स, ठीक है, डज नॉट अप्लाई टू हेट्रोट्रोपिक इफेक्टर्स, ठीक है। वो जो शुरू में आपकी इनिशियली ब्लैक कलर की कर्व नजर आ रही थी आपको, सिग्मोइडल कर्व बनती ही इन केस ऑफ होमोट्रोपिक इफेक्टर्स है, हेट्रोट्रोपिक इफेक्टर्स के केस के अंदर सिग्मोइडल कर्व नहीं बनती। हेट्रोट्रोपिक इफेक्टर्स की बात करते हैं, किस तरह डिफरेंट होते हैं होमोट्रोपिक इफेक्टर्स से। हमने शुरू में बात की थी कि होमोट्रोपिक इफेक्टर्स ऐसे इफेक्टर्स को बोलते हैं जिसके अंदर सबसेट इटसेल्फ एक्ट्स एज एन इफेक्टर। Obviously, तो हेट्रो के अंदर क्या होगा, the effector may be different from the substrate, in which case the effect is said to be heterotropic. आपको नीचे एक डायग्राम नजर आ रही है। Here you can clearly see A is converting into B, B is converting into C, then D, and final product is E. Ideally देखा जाए तो ये सबस्ट्रेट है एंड इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अगर पूरे साइकिल की बात करेंगे, ठीक है, तो E is the end product, right? But this is also a product जो बाद में सबस्ट्रेट बनता है और कन्वर्ट होता है नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर, फिर ये सबस्ट्रेट बनता है एक एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है D के अंदर, D दोबारा सबस्ट्रेट बनता है और कन्वर्ट होता है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल, ऐसे ही है। सो होमोट्रोपिक इफेक्टर अगर यहाँ अप्लाई होता हो, होमोट्रोपिक की बात कर रहा हूँ जो पहले पढ़ा हमने, उसके अंदर क्या क्या चीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एंजाइम, और फॉर एग्जाम्पल इसकी ज़ूम कर लें, दिस इज एन एंजाइम हेयर, any ABCD enzyme that is responsible for conversion of A into B। तो उसकी शर्त क्या थी होमोट्रोपिक इफेक्टर्स की, कि सबस्ट्रेट इटसेल्फ विल कम इनटू एक्शन और उसको एलोस्टेरिकली कंट्रोल करेगा, उसको एज अ फैक्टर भी काम करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव वे के अंदर। बट दिस इज नॉट द केस हियर। हम बात कर रहे हैं हेट्रोट्रोपिक इफेक्टर्स की। हेट्रोट्रोपिक इफेक्टर्स की शर्त ये है, इसके अंदर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल इफेक्टर हो सकता है जो कि सबस्ट्रेट इटसेल्फ ना हो, उसके अलावा कोई और, राइट। सो इस पूरे साइकिल के आखिर के अंदर एक ई आपको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है और ये एक डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि इट विल कम बैक एंड बाइंड टू दैट पर्टिकुलर एंजाइम and inhibits its activity. This negative sign indicates inhibition. Negative effector का काम करेगा ये E, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A से प्रोडक्ट एक सबस्ट्रेट है और फाइनल प्रोडक्ट आपकी बॉडी को चाहिए E। Once E is formed, it will go back, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन का प्रोसेस, अगर आप इसको थोड़ा सा और अगर थोड़ा और डिटेल में देखो, अगर सोचो, ये एक एक फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। वंस अ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इट सेज आई एम फॉर्म्ड, ठीक है, देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट एनीमोर, ठीक है। जो बॉडी को रिक्वायरमेंट थी ई की, दैट इज फॉर्म्ड ऑलरेडी, बट ये यहाँ बन के सिर्फ अपना काम छोड़ नहीं देता, इट गोज बैक, acts as a negative effector on that particular enzyme जो कि step 1 के अंदर यूज हो रहा था in conversion of the first substrate into first product, और उसको जाके inhibit कर देता है, negative effector का काम करता है, ठीक है। So this is the mechanism how heterotropic या heterotropic effectors work। फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है, ठीक है। आप फीडबैक इनहिबिशन बेसिकली अगेन सेम थिंग, यहाँ भी एक आप डायग्राम नहीं है, एक ये आप ये देख रहे हो फिगर सी बनी हुई, जिसके अंदर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मेंशन हुआ है और 1 और 2 प्रोडक्ट्स मेंशन हुए हैं। ऑब्वियसली इट विल कन्वर्टेड इन सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप here, the first enzyme involved in conversion of substrate into product। इस आगे प्रोडक्ट्स बनेंगे बेसिकली। ये क्या दिखाया हुआ है आपको, आगे चल के सेकेंड ईयर में आपने डिटेल में पढ़ना है। दिस इज अ ग्लाइकोलिसिस पाथवे और ये एंड इसमें आपको सिट्रेट्स PCA साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर बनता है,
ठीक है, बीच में बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें काफ़ी ढेर सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मगर यहाँ आपको पॉइंट समझाना है, इस वजह से सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ इन द फर्स्ट ईयर। तो इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ यहाँ समझेंगे। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट 1 with the help of phosphofructokinase enzyme. Okay, the ultimate goal of fructose 6 phosphate is to produce citrate. Once citrate is formed, it will go back, acts as a negative effector or heterotropic effector. क्योंकि सबस्ट्रेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसका आप कोई लेना देना नहीं है, इसने इसके साथ बाइंड किया, एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। सिट्रेट is another molecule, ठीक है, is another substance जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से डिफरेंट है, राइट। और यही डेफिनेशन कहती है हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर्स की, कि सबस्ट्रेट खुद नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई और चीज आके उस पर्टिकुलर एंजाइम जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको इनहिबिट या उसको एक्टिविटी को एनहांस कर सकती है। So once citrate is formed, it goes back, it inhibits this particular enzyme as if the body does not require citrate because it is already formed. Feedback inhibition provides the cell with the product it needs by regulating the flow of substrate molecules through the pathway that synthesizes that product. Flow of substrate molecules, flow of fructose 6 phosphate in this case. Okay? Once the citrate is formed, there is no need for further citrate production. You go back, inhibit the enzyme involved in first reaction. इसको इनहिबिट कर देगा, fructose 6 phosphate further citrate के अंदर convert नहीं होगा through this series of reactions. Heterotropic vectors are commonly encountered. For example, the glycolytic enzyme phosphofructokinase allosterically inhibited by citrate, which is not a substrate for the enzyme. Again, I will highlight this point, which is not a substrate for this enzyme. या BFK की बात कर रहे हैं, या इसमें और भी काफी ढेर से एग्जांपल आ सकते हैं, आपको सारे समझाने के लिए इधर एक एग्जांपल लिखी हुई है। There are hundreds of examples for this mechanism. हम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज या इन शॉर्ट PFK की बात कर रहे हैं, इसका सबस्ट्रेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ना कि सिट्रेट है। So, as per definition, it should not be substrate. Effector should not be a substrate itself in case of heterotropic effectors. So in this case, the final product citrate acts as an effector, goes back and negatively affects this PFK enzyme, inhibits its activity. This is called as feedback inhibition. ठीक है, ये अपना फीडबैक दे रहा है, मैं बन गया हूँ, और बनाने की जरूरत नहीं है। जाता है पीछे जाके, जो पहला एंजाइम आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम है, जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके पहला प्रोडक्ट बना रहा था, उसको जाके इनहिबिट कर देता है। जब दोबारा जरूरत होगी, ये वापस नहीं जाएगा, ये डीएक्टिव, ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को दोबारा कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट्स के अंदर, और दोबारा से एक सारा सिट्रेट बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी और नीड ऑफ द बॉडी। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ, ठीक है। अभी कार्बोहाइड्रेट्स की हमने एग्जांपल की, हमने ग्लाइकोलाइसिस या TCA साइकिल के अंदर से कुछ सबस्ट्रेट्स देखे और प्रोडक्ट्स देखे, और एंजाइम का नाम लिया हमने फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का। अब हम अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट दिस होल डायग्राम। इसके अंदर you can see at the top here threonine, at the bottom isoleucine. There is an interconnected red dot line here. This is the enzyme which is called as threonine deaminase enzyme, that is responsible for the conversion of threonine to get intermediate product A. एंजाइम 2 ऐड करेगा, B आ जाएगा, 3 ऐड करेगा, C आ जाएगा, 4 ऐड करेगा, D आ जाएगा, एंड फाइनली 5th एंजाइम ऐड करेगा और आपके पास आइसोल्यूसिन आ जाएगी। लेट्स फोकस ऑन दिस सबस्ट्रेट threonine and this product isoleucine. This is basically a formation of isoleucine from threonine, जिसके अंदर काफी ढेर सारे रिएक्शंस आते हैं, काफी ढेर सारे एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। ओके, अब हम फीडबैक इनहिबिशन की बात कर रहे हैं। Once the isoleucine is formed from this threonine,
Once isoleucine is formed from this threonine, it will go back, act as negative effector on an enzyme threonine deaminase to decrease its activity. ठीक है, अब ये स्टार्स में दो चीजें देखेंगे, स्ट्रक्चर देखिए एंजाइम का. फॉर एग्जांपल दिस एंजाइम इज threonine deaminase enzyme with which there is a substrate threonine gets attached and leads to the production of isoleucine in a long run. ठीक है, for example there are high levels of isoleucine formed after going through all these reactions, and a body does not need more isoleucine as such. What it would do, it would go back to the first enzyme, go back to the first enzyme, that is threonine deaminase enzyme. Here acts as an allosteric inhibitor and stops the activity of the enzyme. For example, in other case, after some time, there then decreased levels of isoleucine in the body. There is a need to make more and more isoleucine from threonine. The already formed isoleucine will not be able to go back and inhibit this enzyme, threonine deaminase. It will be activated again. Threonine will be converted into these intermediate products and form isoleucine. Okay? So what sort of example it is? Is it a homotropic effector or a heterotropic effector? I need your feedback right here. Chat box के अंदर लिखेंगे. जी, ये होमोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है? ओके, नहीं, अफनान अनवर जो है वो होमोट्रोपिक किस तरह कह रहा है और फरहान जफर भी होमोट्रोपिक कैसे कह रहा है? क्यों बेटा, नहीं समझ आई आपको? होमोट्रोपिक क्या था? होमोट्रोपिक इफेक्टर्स कौन से इफेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर सबस्ट्रेट इफेक्टर का काम करता है इटसेल्फ? ये ज़ैनब बीबी कौन है? हु इज ज़ैनब बीबी? आपको पता है आपने क्या लिखा है इसके ऊपर? आर यू इन योर सेंसेस? एक लाइव सेशन चल रहा है जिसके अंदर 100-150 लोग हैं. ठीक है, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है. ठीक है, जो आप इधर लिख रहे हो ये सारा कुछ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास. हाँ जी, एग्जैक्टली, इट वाज नॉट योर इंटेंशन. होपफुली आई विश इट वाज नॉट, बट प्लीज चेक इट बिफोर टाइपिंग. ठीक है, एंटर दबाने से पहले आप जो लिखते हैं उसको देख लिया करें. ओके ओके, एक्सक्यूज्ड. जी, फरहान जफर, वुड यू लाइक टू justify your answer? Why did you write homotropic? Farhan Zafar is there. Afnan Anwar, are you there? Okay, again, Afnan, this is not homotropic effector because substrate is not itself acting as an effector molecule. Okay, let's go back to this diagram. This is a substrate here, threonine. It is not affecting this enzyme anymore. हमने बात की है इस आइसोल्यूसिन की जो एक प्रोडक्ट है जो थ्रियोनिन से डिफरेंट है. It will go back and affect this threonine deaminase enzyme by attaching itself to allosteric site. नेगेटिव इनहिबिशन का काम कर रहा है, फीडबैक इनहिबिशन का काम कर रहा है, नेगेटिव इफेक्टर का काम कर रहा है.
मगर चूंकि ये थ्रियोनीन खुद से नहीं कर रहा, थ्रियोनीन इस सारे रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, तो आप इसको हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर बोलोगे। आइसोल्यूसिन हियर इन दिस केस, कोई और भी एग्जांपल हो सकती है ए बी सी, ठीक है। जो सबस्ट्रेट अगर खुद एंजाइम को बाइंड करे, जाके एलोस्टेरिकली कंट्रोल करे, तो फिर आप उसको होमोट्रोपिक इफेक्टर बोलते हो। और अगर कोई एंजाइम सबस्ट्रेट के अलावा कोई और दूसरा मॉलिक्यूल आए, कोई और सब्सटेंस आए, कोई और प्रोडक्ट आए जो कि उस रिएक्शन से आगे बनता हो, या कोई साइड से कोई और भी आ सकता है, कोई फैक्टर भी हो सकता है, कोई एंजाइम भी हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, ठीक है। और आके उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को बाय बाइंडिंग टू द एलोस्टेरिक साइड इनहिबिट करे या एक्टिवेट करे, उसको आप हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर बोलते हो। ओके जी, एलोस्टेरिक रेगुलेशन इन अ नटशेल, इसको आप खुद से भी रीड कीजिए, ठीक है। दिस इज ऑल व्हाट यू वांट। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जी डिफाइन एलोस्टेरिक रेगुलेशन, और आपको 2-2.5 नंबर का पूछ लिया जाता है, या इवन कई समटाइम्स 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, और फर्दर उसमें आपको बता पूछ लेते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होती है, पूरा क्वेश्चन ही आपको एलोस्टेरिक रेगुलेशन का आ जाता है, ठीक है। और होमोट्रोपिक इफेक्टर्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक, तो ये दीज आर गुड फ्यू लाइंस जिसको आप अगर रिप्रोड्यूस कर लोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। Okay, I read it for you. A low molecular weight substance, the effector or modifier, binds to the enzyme at a specific site other than the active site. ठीक है, एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, किसी और जगह पे बाइंड करेगा जो कि एक्टिव साइट नहीं होगी, उसके अलावा एंजाइम की सरफेस के ऊपर एलोस्टेरिक साइट होगी। दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स एक्टिविटी, जिसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्टर्स की बात करते हैं। पॉजिटिव इफेक्टर्स कौन से होते हैं, जो इंक्रीज एक्टिविटी करते हैं, और नेगेटिव इफेक्टर्स कौन से होते हैं, जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एलोस्टेरिक एंजाइम्स यूजुअली हैव मोर देन वन सब यूनिट एंड मोर देन वन एक्टिव साइट। In enzymes with multiple active sites that interact cooperatively, velocity v versus s plot is sigmoidal in shape, ठीक है। जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मैकेनिज्म होता है एंजाइम एक्शन, वो हमेशा सिग्मोइडल शेप की कर्व देता है। इसकी एग्जांपल कोरिलेशन के लिए आप आगे चल के अगले टॉपिक के अंदर पढ़ोगे, हीमोफाइलिया में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, वो भी सिग्मोइडल शेप की होती है। Sigmoidal curve means binding of one substrate molecule facilitates or cooperates the binding of substrate at other sites. एक जगह के ऊपर बाइंड कर रहा है और दूसरी साइट्स को और खोलता जा रहा है, उनको एक्टिवेट करता जा रहा है, उनकी इनहांस करता जा रहा है, उनकी एबिलिटी को, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी को, उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी को, for binding with different substrates. When substrate itself acts as an effector, आपको पता है, it's called as homotropic effector. अगर substrate के अलावा कोई और सब्सटेंस बाइंड करे जो डिफरेंट हो सबस्ट्रेट से, द इफेक्ट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर्स। एग्जांपल देख लें, पीएफके हमने की थी, ठीक है, इट इज एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड बाय सिट्रेट, ये हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर की एग्जांपल है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है, दैट इज एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके जी, अगेन एक डायग्रामेटिकली है, दिस इज इस शेप को याद कर लें, इस एक मॉडल शेप होती है, एस शेप, ठीक है। दिस इज एक मॉडल कर्व। मॉडल्स हैं, कॉपरेशन है। कॉपरेशन अगर होमोट्रोपिक है, मतलब सबस्ट्रेट इज सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल थिंग, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर भी वो बाइंड कर रहा है, एक्टिव साइट के ऊपर एनहांस कर रहा है एक्टिविटी को, ठीक है। और इधर पॉजिटिव इंडिकेट्स इनहांसमेंट, अगर नेगेटिव लिखा होता तो ये एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा होता। हेटेरोट्रोपिक की बात करेंगे, इसका मतलब देयर इज some other molecule that is responsible to bind with the as a effector to the allosteric site, not the substrate itself. वो आगे effects देगा, it will enhance, अब positive लिखा हुआ है तो increase करना है उसने, it will enhance the active sites, ठीक है, binding of the substrates to the active sites, catalytic activity increase कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर substrate itself acts as homotropic हो गया, और heterotropic के अंदर is a different effector molecule other than the substrate that first binds
और वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग किस तरह करता है, आगे कोऑपरेशन कैसे करता है, वो आगे फर्दर मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर आपकी अटैचमेंट आ जाती है, इंक्रीज अफिनिटी हो जाती है, एंजाइम की बाइंडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कैटालिटिक एक्टिविटी इनहांस हो जाती है, सारे सब यूनिट जितने भी हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, मोर एंड मोर बाइंडिंग साइट्स प्रोड्यूस करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट आके उसकी एक्टिविटी को इनहांस कर सके। अगर यहाँ नेगेटिव लिखा हो जाता तो हम ये सारी बात ऑपोजिट में बोल रहे होते, अगर ये नेगेटिव इफेक्टर आके लगा है, ये हर चीज़ को रिड्यूस करेगा। ये नेगेटिव साइन वुड इंडिकेट रिडक्शन, डिक्लाइन, डिक्रीज, पॉजिटिव साइन मीन्स पॉजिटिव, इंक्रीज, इंक्रीमेंटल, ठीक है, एनहांसमेंट, ये सारा कुछ, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव से आपने ये टर्म समझ लेनी है। ओके जी, नेक्स्ट part of the regulation is the regulation of enzymes by covalent modification. Covalent modifications क्या होती हैं? आपने अक्सर सुना होगा, some enzymes are phosphorylated, they have got phosphate groups attached with them, with their structure. Some enzymes, whereas are dephosphorylated enzymes, or there is no phosphate attached with them, ठीक है। इंटरकन्वर्जन्स पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। एक मिसकंसेप्शन होती है, इसका डिटेल में नहीं पढ़ा होता, इसको पहले दूर करेंगे। इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस कि आपको जी फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम की बात आ गई है तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्टिव, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज़ ट्रू। इन सम केसेस, इन सम एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम की अगर बात करें, उसको फॉस्फेट ग्रुप लगता है जाके वो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म के अंदर आता है, मगर वो डीएक्टिव स्टेट के अंदर होता है, इनएक्टिव स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम इज कंसिडर्ड टू बी इन इट्स एक्टिव फॉर्म। क्या आप कहेंगे जी इसकी फॉस्फोरिलेशन हो गई है एंजाइम की तो ये अब एक्टिव हो गया? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ट्रू, बट नॉट एब्सोल्यूट 100%। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फॉस्फेट जाके लग जाए, वो फॉस्फोराइलेटेड हो जाएं, तो वो डीएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। वो आगे चल के देखते हैं, दो एग्जांपल्स देखते हैं कौन सी है। Many enzymes may be regulated by covalent modification, most frequently by addition or removal of phosphate groups from the specific serine, threonine and tyrosine residues of the enzyme, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप्स के रेजिड्यूज लगे होते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, जिसमें सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन हैं, इनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप्स आएंगे, लगेंगे और इन्हीं से उतरेंगे। Protein phosphorylation is recognized as one of the primary ways in which cellular processes are regulated. There are two sets of enzymes. One are called as protein kinases. The other ones are phosphoprotein phosphatases. In short, phosphatases. प्रोटीन काइनेजेस का क्या काम होता है? प्रोटीन काइनेज का काम होता है एटीपी को यूटिलाइज करना, उसके अंदर से फॉस्फेट एक्सट्रैक्ट करना, रिवेंज करना और जाके एंजाइम के ऊपर लगा देना। इन कंट्रास्ट फॉस्फेटेजेस का क्या काम होता है? जो ऑलरेडी फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम होता है, उसके ऊपर फॉस्फेट लगा होता है, विद द हेल्प ऑफ H2O वाटर उसके ऊपर से फॉस्फेट उतारना, उसको डीफॉस्फोरिलेट कर देना, ठीक है। प्रोटीन काइनेजेस जब भी आएंगे आपके सामने एमसीक्यू में, एससीक्यू में या किसी भी वाइवा क्वेश्चन के अंदर, प्रोटीन काइनेज का क्या फंक्शन होता है? टू फॉस्फोराइलेट, addition of phosphate groups to a particular enzyme or substance. Phosphatases से आपको क्या समझ आती है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि they are responsible for the removal of phosphate from a particular substance. Response of enzyme to phosphorylation. Depending on the specific enzyme, the phosphorylated form may be more or less active. जो हम पहले बात कर रहे थे, जरूरी नहीं है phosphorylated enzyme will be more active, जरूरी नहीं है, it can be less active as well, ठीक है, than the unphosphorylated enzyme. एग्जाम्पल देखते हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस की और ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन की। ग्लाइकोजन सिंथेसिस के अंदर एक एंजाइम यूज होता है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन के अंदर एक एंजाइम यूज होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम।
ठीक है, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। Phosphorylation of glycogen phosphorylase enzyme, that enzyme that degrades glycogen, increases its activity. तो आपने एक एग्जांपल के अंदर ये देख लिया है, एक ऐसा एंजाइम है जिसका जो भी काम है, ठीक है, उसकी फॉस्फोराइलेशन करने से, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगाने से उसकी एक्टिविटी एनहांस हो रही है। ठीक है, इन कंट्रास्ट एक और एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, जब आप उसके साथ उसको फॉस्फोरेट करते हो, उसके ऊपर आप फॉस्फेट ग्रुप लगाते हो विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम, तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये नेचर ने आपको ये सारे मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स व्हेन get phosphorylated becomes in active form, but there are few options जो कि फॉस्फोरिलेशन या फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने के बाद एक्टिव की बजाय डीएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। डायग्राम को देखेंगे, दिस इज एंजाइम जो कि एक नॉर्मल स्टेट के अंदर है। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू फॉस्फोराइलेट दैट एंजाइम, योर बॉडी वांट्स टू फॉस्फोराइलेट दैट एंजाइम, द एंजाइम कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेज, जो कि एटीपी को कन्वर्ट करेगी एटीपी के अंदर और उसका फॉस्फेट ग्रुप उठा के एंजाइम के साथ बाइंड कर देगी। Now this enzyme, after the action of protein kinase, becomes phosphorylated enzyme. Likewise, अब आपको at some other point जरूरत पड़ती है इस phosphorylated enzyme को dephosphorylate करने की. There is another set of enzymes called as phosphoprotein phosphatases, which involve water. इसके अंदर से फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे and you will get dephosphorylated enzyme again. फॉस्फोराइलेट करना है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है किसी एंजाइम के साथ, प्रोटीन काइनेज एंजाइम वुड बी इन्वॉल्व्ड। फॉस्फेट उतारना है किसी एंजाइम से, इस पे फॉस्फेट लगा हुआ है, दिस पी, राइट, पीओ, ये दिस एंजाइम इज फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन काइनेज, और आपने इसको डीफॉस्फोराइलेट करना है अगेन बैक टू नॉर्मल। ठीक है, तो आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज की। तो ये प्रोटीन काइनेज जब भी आएगा इसका मतलब ये फॉस्फेट लगाने जा रहा है, फॉस्फेटेज जब भी आएगा इसका मतलब फॉस्फेट उतारने जा रहा है। डज नॉट मीन कि प्रोटीन काइनेज फॉस्फेट लगा रहा है तो ये एक्टिव ही करने जा रहा है इस एंजाइम को। इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर एंजाइम। सम एंजाइम्स get active when phosphorylated, whereas some enzymes get deactive or inactive when get phosphorylated, and vice versa. Okay जी, induction and repression of enzyme activity. अभी तक जो हमने बातें की सारी वो रिलेटिवली शॉर्ट टर्म होती हैं। ठीक है, इंडक्शन रिप्रेशन आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो कि स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इवेंट्स सच एज प्रेगनेंसी हो रही होती है जब, ठीक है, एक डिफरेंट स्टेट ऑफ द बॉडी होती है, या जब छोटे बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड पेस पे चल रही होती है, उस टाइम के ऊपर ये प्रोसेसेस होते हैं। दे आर स्लो टू एक्ट in comparison to previous processes which you studied before. But these type of processes are specifically dependent on hormones. Hormones क्या करते हैं, genetic level पे जाके DNA की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं RNA के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ पहले नहीं आपने देखा था, राइट? सिंपल एलोस्टेरिक साइट्स थी, वहाँ आके बाइंडिंग होती है, ठीक है, वो उसकी पूरी मशीनरी को एक्टिव कर देता है, उसकी एक्टिव साइट्स को, उसकी बाइंडिंग को एनहांस कर देता है। नेगेटिव फैक्टर लगेगा तो सारा कुछ रिवर्स में करेगा, पॉजिटिव फैक्टर करेगा तो वो एनहांस कर देगा। ठीक है, इंडक्शन रिप्रेशन प्रोसेसेस के थ्रू एंजाइम एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होती है, रेगुलेट कैसे होती है, इट इज़ बेसिकली हार्मोन डिपेंडेंट, स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर आती है, नॉर्मल रूटीन के अंदर नहीं आती। लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस हैं, स्लो होते हैं, इतना जल्दी क्विकली नहीं होते। ठीक है, होता क्या है, जेनेटिक लेवल के ऊपर जाके एंजाइम सिंथेसिस, ठीक है, होती है थ्रू डीएनए, जिसके अंदर डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी इनटू इट्स आरएनए। इंडक्शन का मतलब है इंक्रीज्ड और रिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज्ड।
enzyme synthesis leads to an alteration in the total population of active sites. किसी एंजाइम की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ गई है किसी खास स्टेट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपकी स्लो प्रोसेस है बट जेनेटिक लेवल के ऊपर जाके उस एंजाइम की सिंथेसिस को एनहांस कर देगा, ठीक है, नंबर ऑफ एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। किसी एंजाइम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर, तो अगेन डीएनए लेवल के ऊपर जाके उसकी ट्रांसक्रिप्शन करके इनटू एन आरएनए उसकी सिंथेसिस को रिड्यूस कर दिया जाएगा थ्रू रिप्रेशन, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। Enzymes subject to regulation of synthesis are often needed at only one stage of development or under selected physiological conditions. हमने पहले बात की ग्रोथ की, हमने पहले बात की प्रेगनेंसी, ठीक है। हम और एग्जांपल कर लेते हैं, इंसुलिन की एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट है ना, नॉर्मल स्टेट से हट के एक स्टेट है, किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है, उसके अंदर इंसुलिन बिकम्स मोर एक्टिव, ठीक है। जितनी होती है टाइप 2 की अगर बात करें, टाइप 1 में तो होती नहीं है, ठीक है। टाइप 2 की बात करें तो क्या करती है, वो आपके जो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल्स है उनसे फाइट बैक करती है, ठीक है। और और सर्टेन सेट ऑफ एंजाइम्स को रिप्रेस या इंड्यूस कर सकती है, ठीक है, एट देयर जेनेटिक लेवल डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बॉडी। Elevated levels of insulin as a result of high blood glucose levels cause an increase in the synthesis of key enzymes involved in glucose metabolism. In contrast, enzymes that are in constant use are usually not regulated by altering the rate of enzyme synthesis. Okay. ओके जी, वी टाइम हो गया ख़त्म, तो अभी इसको इसमें एक दो चीज़ें और थी, छोटे छोटे एक दो कॉन्सेप्ट्स और थे। वी विल कंटिन्यू टुमारो विद दोज कॉन्सेप्ट्स, और कल हम इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे एंजाइम्स की। आप लिपिन कॉर्ड थोड़ी सी पढ़ के आना, उसके अंदर खासतौर पे आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, हमें CKMB के बारे में थोड़ा सा आप देख के आना, वो क्या होते हैं, उसकी आइसोफॉर्म्स क्या होती हैं, डिटेल में देखेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर या और बॉडी डिसऑर्डर्स के अंदर। डिफरेंट आपके ऑर्गन्स की स्टेट ऑफ हेल्थ कैसे डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर किस तरह एंजाइम्स हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो टुमारो विल एंड दिस एंजाइम्स टॉपिक, और आपका जो आने वाला टेस्ट है आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली इट्स ऑन मंडे एंड दैट इंक्लूड्स एंजाइम एज वेल, ठीक है। वाटर पीएच होगा, आई थिंक ECM होगा और एंजाइम्स होगा। So we'll continue tomorrow at the same time 11 to 12 with the enzyme last topic. Thank you.